अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, महंगाई ने जहाँ मजदूर और मेहनतकश तबके को दबोच रखा है, वहीं इनमें से अक्सर लोगों को उनकी बदनीयती भी ले डूबी है। आइए आपको लिए चलते हैं एक ज़ेर तामीर मकान की जानिब। क्या हाले सुनावा दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा है। इट नहीं सीधी लाउंदा ते गाना सही गाउंदा है। तालब बह जा किते बह जा, ए बंदा मुक जांदा, मकान नहीं मुकदे। हाय सही कम ते मुकेंदे पे हैं, कम ते करेंदे पे हैं, टोया पेंदा पिया। तालब ध्यान ना टोया कड पुत्रे। अच्छा सही, अच्छा ठेकेदार जी, मैं सुनिया तुसीं दूसरा ब्याह कर लगे हो। हाय की बाबा जी दूसरा विआह करना, महंगाई इन्नी है, छोटे छोटे बच्चे आ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤ। ਹਲਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਗੀ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ। ओ साईं महंगाई दा ते हाल थी गए, मेरा साला डकैती दे केस च अंदर थी गए। या ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। अल्लाह खैर करे पुत्र, ध्यान नाल। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਵੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹਰਕਲੀਸ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਐਰਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੋਟ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। वाह 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 ठेकेदार साहब, शरीफ आदमी को तो कोई सलाम दा जवाब नहीं देता, तुसा वोट दे आए हो। ਉਹ ਭਾਈ ਹਨੀਫ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਕੈਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ओ फड़या गया, मैं तो नहीं फड़या गया, मैं तो मिस्त्री मजदूरी करे ना पिया। ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਤੋਂ ਫੇਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ, ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਮੈਂ ਫਿਰ। अल्लाह खैर करे। ਬਾਹੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਿਓ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਊ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਬਾਬਿਓ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਿਓ, ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਰਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਕਰਨ ਹੀ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਓ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ। बाबियो ए डिफेंस ते बैरियर अगर जे तुसा बनाए, यही तुसा अपने हत्था नाल बनावणे, ये कोई पैरा नाल नहीं भी बनावना। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨੀਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? अस्सलामुअलैकुम। और बिस्मिल्लाह, क्या हाल है सही, ठीक ठाक हो? और ठीक है भाई, होरे कदों बनाओगे? मैं तो हैरान हूँ यार, ठेकेदार जब भी मैं आता हूँ बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं। नहीं बस मेरे को पूछ रहे सी, मशवरा ले रहे सी कि इथों इंज कर। कौन सा मशवरा ले रहे हो? उधर ही वो बैठा हुआ है, कल आया था, उधर ही लगा हुआ है। ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਟਾਂ ਲਿਆ ਓਏ। ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ बैठो दो दो ईंटें लेके आ रहा है बंदा तेरा। ਹਾਂ
वो मजदूर ही लगा वो वाला जो 4 ईंटें तो उठा ले। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, 2-2 ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਆ। 2-2 ईंटें लेके दिहाड़ी तो पड़ जाएगी ना हमें। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਲੋ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗੋਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਏ ये देखो ना 10-12 ईंटें लेके आता है, चाय पीने चला जाता है। इतनी चाय पीता है मुझे तो लगता है नासरदीप लगा लिया हुआ तुमने। ओ बहू जी इतनी दूर से तो खोता ही ला सकता है ईंटें जितनी दूर से मैं ला रहा हूँ। ओ भाई तुम खोता लगा लो, तुम मुझे खोता ना बनाओ। ਹਾਏ मैं तो जब भी आता हूँ मैं तुम लोगों को यही करते हुए देख रहा होता हूँ। ਲਓ ਜੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਖੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਲੱਤੀ, फिर ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਲੱਤੀ। नहीं खोते का तो बनता था कि तुम्हें दुलती मारे, तुमने खोते को क्यों मारी भाई? ओ बहू जी खोते ने लवाइयां सी नवीਆਂ खुरियां, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ये होता है इधर सारा दिन। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ। ਸੀਮਣ ਲਿਆ, ਸੀਮਣ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੀਮਣ ਲਿਆ ਜਲਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, तुमने मुझे कहा था कि मैं 8 महीने में मकान खत्म कर दूंगा। ਜੀ अभी ग्रे स्ट्रक्चर नहीं पूरा हुआ तुम्हारे से। ਓਹੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਓਏ हले तो मैं ही सिर्फ दूरों तेरा मुंह वेखण आना वा, ਲਓ ਬਾਬੇ हले सिर्फ तेरा मुंह वेखण ने आ। जिस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया ना मैंने जाके थाने दरखास्त दे देनी है तुम्हारे खिलाफ। ਕੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਓ अभी तो तुम ही मुझे शीशनाग लग रहे हो। ਓ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਓ ਚੱਲ ਜੇ, ਓ ਮੇਰਾ ਪੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਫੇਰ ਛੱਡ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਿਓ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ। अब तो निकल आया, तू कदों निकलना है? ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਊ ਜੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ, ਕੰਦਰੋਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਬਾਊ ਜੀ ਕੱਲ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਭੇਜਣੀ ਜੇ। वो किस लिए? ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਬੀਮ ਪੈਣਾ ਹੈ। हर दूसरे दिन देख का ऑर्डर दे देते हो, इतनी तो दाता साहब देखे नहीं पकती नहीं जितनी मेरे मकान पे पक रही हैं। रोज देख जी, नी खोदी है जी देख ले आए, पहली इट रखी है जी देख ले आए, ਹਾਏ डैंप पैर है जी देख ले आए, अब बीम पैने हैं देख ले आए, अब लेंटर पैना है देख ले आए, अब लेंटर खुलना है देख ले आए। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। करेंगे करेंगे, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारा शगन कब पूरा करना है। मुझे तो लगता है मकान नहीं मैं बना रहा कि मैं मुंडे के दिन रख बैठा हूँ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਕਾਨ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਸਲਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ यार तुम लोग मजदूर मिस्त्री हो या दहशत गर्द हो? साथ मुझे डरा भी रहे हो, साथ मुझे दादे भी दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਡੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਲਾਇਆ ਜੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਏ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸੀਮਟ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। हैं ये छोटे छोटे सरिये क्यों लपेट के तुम्हारे स्कूटर पे रख रहे हैं? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਫਾਲਤੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਈਦੇ ਨੇ। किधर गया मुंशी? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ ਬਿੱਲਾ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਕੇਕ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਹਾਏ एक किस लिए? ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਵੱਧ ਲੈ ਆਵੇ, ਬਾਊ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਯਾ ਜੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰ ਯਾਰ ਫੋਨ ਨੂੰ। ओ मेरे मालिक, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ मुझे टूट तो गया। ईमान से यहाँ पे आके लगता है मैं मिस्त्री मजदूर नहीं देखने आया हुआ, मैं अपने ससुराल आया हुआ हूँ। ਉਹ ਬਿੱਲੇ
और यार एक चाह वध लै आई बहू री भी अज साडे नाल चाह पीणगे आहो आहो लै यार उन्हां दा कप डिस्पोजेबल ले आई डिस्पोजेबल चीनी अलहदा घिन के आवे उन्हां को शुगर है खंड वखरी ले आई अल्लाह दे वाले कह दिया बहू जी कह दिया। और ठेकेदार जी कुछ खुदा का खौफ खाओ, 7 साल हो गए हैं मकान शुरू हुए 7 साल? जी हाँ, वालिद साहब ने शुरू कराया था। ये पिछले हफ्ते अब्बा जी की 7वीं बरसी हुई है। 7 साल हो गए साहब जी, तो चीज फिर हमें नहीं बढ़ती। शालामार को 15 साल लगे हैं और 7 साल तो हो गए हैं, और कितना को अरसा लगाना है। ये सिर्फ 3 साल हुए इनको मकान शुरू हुए, साल हो गया वो इधर शिफ्ट भी हो गए हुए। ओ जी शिफ्ट हो गए ने तो चोरी भी तो हो गई उन्होंने घर। और उनके घर तो एक दफा चोरी हुई है, मेरे घर तो रोज हो रही है। रोजाना आके मैं देखता हूँ सीमेंट आप इस तरह खत्म करते हैं जैसे पता नहीं मेरा मकान सीमेंट का नशा करता है। नहीं जी, लगी हुई नजर आती हैं 2-3 बोरियां, आप लोग कह देते हो 12 बोरियां लग गई हैं, 18 बोरियां लग गई हैं, 30 बोरियां लग गई हैं। ये मेरा मकान बन रहा है या दासू डैम बन रहा है? बाबू जी असी चोर नहीं, असी हलाल दी करके खाने हैं। नहीं नहीं, मुझे नजर आ रहा है वो देखो बैठा हुआ हलाल कर रहा है। और जनाब मैं माल दी गल करना, तुसीं 50 बोरियां भेजियां सी, असीं 8 दिनां च 22 बोरियां लाइयां। अपनियां गिन लो 28 ना हुईयां ते जो चोर दी सजा साडी सजा। ते बाबू जी 28 बोरियां ते कल मुक वेसन 50 बोरी होर मंगवा के लो क्योंकि बीम पाउणे। तो कल बीम भी पै जाना जे, जर्दे दी देग नहीं जे भुलनी। ठेकेदारा को तेरे मामू का मकान नहीं बन रहा जो हर दूसरे दिन जर्दे की देग का ऑर्डर दे देते हो? मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ, जिस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो मैंने कट्ठी 6 देगे और 7 सपारा पढ़ने वाले बच्चे बुला लेने। हजूर असी चौड़ां दे भुखे नहीं, रिज़क ते रब देंदा। तुसीं परसों 5000 रुपया जरूर भेजना है। क्यों? इन्ने गो तो डिगना है। यानी गो से परसों गिरना है और तुम्हें आज पता चल भी गया है। और जनाब मैनू पता है ना, जो ये लेंटर बनन चढ़दा ना उदों डिगदा थले। यकीन करो तुसीं, इन्ना उच्चा सी मेरे नालों, ये लेंटर तो डिग डिग के इहदी धौन विच ठोक गई है। बिल्कुल। एक मिनट मालिक मकान साहब, क्या नाम है आपका? सूफी इफ्तिखार है जी मेरा नाम जनाब। तो सूफी इफ्तिखार साहब, ये कितने अरसे से आपका मकान बन रहा है? और जी बड़े सूफी साहब ने, वालिद साहब ने शुरू कराया था। अब उनकी 7वीं बरसी हो गई और मकान देखे अभी तक लेंटर तक नहीं पहुंचा। जिस नियत से ये काम कर रहे हैं ना, सूफी साहब की 14वीं बरसी भी आ जाएगी तो ये मकान मुकम्मल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटे, ठीक हो जी। अंकल कब शिफ्ट हो रहे हैं फिर आप? कब्रिस्तान जी। इधर तो बेटा तुम देख रही हो, इधर कहाँ शिफ्ट होना है अभी? ये कौन है जनाब? ये हमारे हमसाए हैं जी, ये सामने मकान वाले, बड़े अच्छे लोग हैं, उनकी बेटी है ये। कोई भी किसी चीज की जरूरत हो फौरन मुहैया कर देते। नहीं अंकल कोई ऐसी बात नहीं, ये भी हमारा अपना ही घर है। ठेकेदार अंकल जब भी कोई खाने के लिए चाय के लिए बोलते तो मैं फौरन दे देती हूँ। ओ जे हिक कदी वारी चाह दे दित्ती है ते इंदे दसन वाली केड़ी गल है? अंकल मैं कोई शिकायत तो नहीं कर रही, अगर आप मुझे रोजाना 2 दफा भी बोलते हैं तो मैं आपको 2 दफा भी चाय देती हूँ। पुत्र इहो जिहियां नेकियां दा जिक्र नहीं करीदा, बरकत उठ जांदी है। ठेकेदार आकाश में गलत आदमी हुंदा और मेरे कोल पस्तौल हुंदी, मैं इत्थे रख के ते बरकत उड़ा देनी सी। ओ ठेकेदार, बदनियती से बरकत उड़ती है। मैं कितनी देर से देख रहा हूं, तुम्हारे ये मजदूर सिवाय बातों की और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लो जी बाबू जी, ऐसा टेरेस सोना बनना ना ताड़ा इत्थे, जेड़ा टेरेस पे बैठेगा उन्होंने लगेगा कि मैं समंदर के किनारे बैठा। आ जाओ यार, चल आ दी आगे पी लो। सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम सलाम, किधर गए हुए थे? मैं चाय लाने गया था बाजार से। आ जाओ यार, चाय बाहर ला दी, आ जाओ। क्या मतलब बाहर कहाँ लगा दी है? वो जी ला के बाहर लगा देता हूँ चाय, तो फिर वहां पे बैठ के हम सारे चाय पीते हैं। ओ बिल्ले, तुम्हें इनका ध्यान रखने के लिए इधर लगाया हुआ है, तुम इनके साथ ही मिले हुए हो। वो चाह फेर तो नहीं ठंडी कर लिया है? नहीं गरम है गरम। पत्ती तेज रखाई है ना। हाँ जी। ओ केक ताजा घिन के आए ना। हाँ जी। बिल्ले मेरी ते बाऊ ना दी चाह अंदर ही भेज दे। अच्छा जी, मैं भेज देना। नाल फ्रूट केक भेज दी। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तौबा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे हाथ च छोटी सी, मैं खिंच के चड़ेल दे मथे च मार। ओहो चड़ेल नहीं सी मां, मैं तुहाडे कोलों लस्सी लैन आया सा।
हाँ जी सुनाइए, रोजे कैसे जा रहे हैं आप सबके? रोजे तो अच्छे जा रहे हैं, आप ये बताएं कि इफ्तारी कब करा रहे हैं? हाँ बुलाना फरीद साहब, गोगे ने 2 समोसे ले आके ਤੁਹਾਡੇ 30,000 ਦਾ बेड़ा गर्क कर जाना जी। चलें कर लेते हैं, सब मिलके यहीं कर लेते हैं किसी दिन इफ्तारी। ये बहुत अच्छी बात। ये सवाब का काम है फरीद साहब, आप हिम्मत करें। खाना पीना तो नसीब का है। नसीब गोगे ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਟੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਿਆ। ओए अच्छा, ਔਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟੱਪ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। वैसे यार माफ करना, तुम लोग सब मिलके गोगे का मजाक उड़ा रहे हो। अफ्तारी कराना तो सवाब का काम है। सर अफ्तारी कराना तो सवाब का काम है, लेकिन अफ्तारी लूटना तो सवाब का काम नहीं है ना। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। वालेकुम सलाम। ਮਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? नहीं पुत्र मैं सैरिये हमदा पढ़दी रही दी रब नू याद करनी बड़ा मजा आउंदा है। माँ जी आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह दा पुत्र, रोजियां च ते बंदा खुशी नाल ही तगड़ा हो जांदा है। क्या बात है। सारा दिन इन्ना मजा आउंदा है, अल्लाह नू याद कर कर के रूह ही तगड़ी हो जाती है। क्या कहने। मैं तो अपने मोहल्ले में सबके घर बारी बारी अफ्तारी भेजती हूँ। अच्छा, मुझे शुरू से आदत है जी। अल्लाह के फजल से। अब तो पूरे रोजे नहीं रखे जाते, मगर मैं रखती जरूर हूँ। जुम्मे वाला दिन तो मैं जरूर रोजा रख ले। बहुत अच्छी बात है माँ जी। अल्लाह मुंडे मेरे लाड़दे ने फोन ते अम्मा ना करिया कर, तेरी शुगर लो जाती है। मैं आनिया पुत्र ना रखा ते फिर मेरी तबीयत लो जाती। क्या बात। सारा दिन सर्दी कोटदी ते रोनी आ फिर मेरे रब्बा मेरे को रोजा क्यों नहीं रखा जाता। फिर मैं रख लेनी तो मगर अवतारी में सब ते घर रोज वारी वारी देनी आ जाके। वाह 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 माँ जी, सानू किदों करा रहे हो इफ्तारी? लो तू किथों मेरा मल्लेदार बन गई। हाँ जी, असी रह के नहीं आए तुहाडे महल्ले दे विच। मैं पुत्र शो शास्ते नहीं अवतारियां कराउंदी, इत्थे आके करावां अवतारी तेरे ते तेरियां फोटोआं बनन, वीडियो बने तेरी। मैं नहीं इंज करदी। मैनू अब साडे नाल जेहड़ी खरशैद रहिंदी ओदा मुंडा मैनू आंदा अम्मा तू जदों अवतारी देन लगदी है ते किसे नू ओदे पहले ओदी फोटो खिंचिया कर। मैं क्या फिटे मुंह तेरा, बंदियां दियां फोटोआं ते सुनियां सन, सालना दियां फोटोआं किथों खिंचनियां। ये मुनीबा ने मुझे बताया कि लोग तो अब दावतें करते हैं ना, तो अवतारियां बना बना के तो उनकी तस्वीरें उतार के तो उस पे लगाते हैं वो नेट पे नानो, नेट पे। नेट पे। तो मैंने कहा पुत्र ये कौन सी अकल वाली बात है। खाना पीना जो है वो तो अपने घर में है। बिल्कुल सही। तो ये तो बड़ा शोखा काम है, आप नमाइश करें अपने खाने की। हाँ जी, इस काम को अब लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग में हो तुम, फॉर यू पे हो तुम। ट्रेंडिंग में आ गया है। हाँ जी। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह किसी नु ट्रेंडिंग च ना ले आवे। अब मेरा एक भतीजा सी, वो बेचारा एक ट्रैक्टर च आ गया सी। हाँ जी, ट्रैक्टर और है, ये नेट का ट्रेंडिंग और है। अच्छा हाँ जी। मशहूरी माँ जी, मशहूरी मतलब है जुल्फी के कहने का कि नेट पे आप मशहूर हो गए, छा गए। इधर कि भी इतने अच्छे अच्छे आप लोग खाने खा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आज हमने ये खाया वो किया। टेलीफोन ते बखांदे, टेलीफोन है ना शर्मा वाली गल। हाँ जी। हमारे लिए तो ये हुक्म है कि खाना पकाओ तो उसकी
खुशबू भी ना साथ वाले घर में जाए। जी हाँ माँ जी, बड़ी अजीब ही बात हो गई है। मैं एक दोस्त की तरफ इफ्तार पे गया, अजान हो गई, रोज़ा खोलने का वक्त हो गया। अब रोज़ा खोलने के लिए खजूर उठाया है तो वो मुझे कहने लगा यार 1 मिनट ठहर जाओ ज़रा तस्वीर बना लेने दो। वो जितनी चीज़ें दस्तरखान पे पड़ी थी, अजान हो रही है, वो पहले तस्वीर बना रहा है और किसी को रोज़ा ही नहीं खोलने दे रहा। जो दोस्त चल जाएगा ना तो मेरे को छोटी लैके जा। ठीक है माँ जी, पिछे फोटो ते पिछो मारो दे लक। ठीक है माँ जी। है को गल करना पुत्र, वैसे सबको एक दूसरे को खिलाना पिलाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। ये तो मोहब्बत के बहाने होते। हम शायों में हम कोई चीज अच्छी पकाते थे तो फौरन दे के आते। साडी मां जी हुंदी सी पुत्र प्लेट च पा ते नाल खाला शकीना नु फड़ाए। खाला शकीना अल्लाह बख्शे कुछ पकांदी ते ओ साडे अल भेज छाड़दी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो चलो ठीक है। वैसे आप किसी दोस्त को, किसी बहन भरा को अफ्तारी पे बुलाते हैं, वो भी चलो ठीक है। बिल्कुल। नमैश का जी बिल्कुल सही। बस मां जी हुण ते नमैशां ही रह गई ने, मुहब्बतां ते खत्म हो गई ने। अद्धे नो ज्यादा रोजे गुजर गए ने, मैनू किसी ने एक दिन अफ्तारी ते नहीं बुलाया। चंगा गीत है। बस गोगे तेनू कौन बुलावे, तेरा ते मेदा अफ्तारी तो पहले इंज खाली हुंदा जिवें किसी गेट ते नहीं लिखिया हुंदा गोदाम किराए के लिए खाली है। गोगे नूं हर वेले यही इतराज रहिंदा है कि मैनू अफ्तारी ते नहीं बुलांदे, अफ्तारी ते नहीं बुलांदे। गोगे तू आप किसी नूं क्यों नहीं बुलांदा? तू रावी दे पुल थल्ले रहिंदा। रावी दे पुल तो खलो के जेडे लोकी चीलां नूं गोश्त सुੱਟਦੇ ना, गोगा दरिया 'च खलो के ओ कैच करदा। अफ्तारी दा घुग्गू वजदा ते तैनू भरजाई एक खजूर दिंदी है ते सहरी दा घुग्गू वज जांदा को खजूर दी गिटक तक नहीं पहुंचे जांदा। जुल्फी यार वैसे कमजोरी की इंतहा है। मुजफ्फर तुम ना बोलो, तुम तो कमजोरी की इब्तदा हो। फरीद साहब, मुजफ्फर माशाल्लाह सुबह 2 पुड़ियां सहरी खाता है और शाम को 2 पुड़ियां अफ्तारी खाता है। यार गौरी कहाँ इतनी माजी संजीदा बातें कर रही हैं यार। उतरे कदों संजीदा रहन दे देने किसे गाल लू, बड़े शरारती मुंडे ने। एक पासे इबादतां दा महीना हुंदा है, एक पासे इन्हां दियां शरारतां दा महीना। इन्नियां शरारतां करदे ने, सारी रात ते जागदे रहिंदे ने। किसे दी टल्ली वजा के दौड़, किसे दा बूहा खड़का के नश। 3-4 दिन पहले मेरा बूहा खड़किया राती। मैं उठ के बूहा खोलिया ते अगे शरारती मुंडे एक विचों चड़ेल बन के खलोता आया। मैनू इस उम्रे चड़ेल कोलों काहदा डर लगना। मेरे हाथ च छोटी सी, मैं खिच के चड़ेल दे मथे च मारी। ओहो चड़ेल नहीं सी मां, मैं तुहाडे कोलों लस्सी लैन आया सा। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। अभी तो सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि करिया मिले तो सारा पाकिस्तान लुड़ियां पा रहे हैं। नाजरीन दिलचस्प खबर के लिए आपको लिए चलते हैं खबरों के जेम्स बॉन्ड अजीजी की तरफ। जी अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है। आज जो खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं वो बड़ी दुखिया सी खबर है। उस खबर में से आंसू टपक रहे हैं और उस खबर ने अपनी आंख के ऊपर हाथ रखा हुआ है और एंजन भी कर रही है। नायरीन, खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को कर्ज लेकर चलाने पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनकी बगल में है। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि बगल में कशकोल और मुंह पे दे जा सकिया। बात तो उनकी सच है। मैं खुद कभी कभी सोचता हूं कि जितना हम मांग चुके हैं और जितना हमने हर मुल्क से मांगा है और तिर से मांगा है, अब तो हमारा वजीर आज़म जब किसी इंटरनेशनल अजलास में शिरकत के लिए जाता होगा तो वहां पे जब हमारे वजीर आज़म की तकरीर की वारी आती होगी तो कई वजीर आज़म बीच में से कह देते होंगे कि भाई जी मैं जरा
आया। हाँ, जिस तरह होटल पे 4 दोस्त रोटी खाएं तो बिल देने की बारी आती है तो विचो सियाना जो होता है वो ऐसे करके निकल नहीं जाता। या जैसे ट्रेन में अगर आप बगैर टिकट के चढ़ जाएं और टिकट चेक कर आ जाए तो आप फटाफट 2-3 घंटे के लिए टॉयलेट में रुखसत हो जाते हैं। ऐसे भी होता है कि मस्जिद में जब वो पैसे इकट्ठे करने वाला रुमाल फेर रहा हो तो जिस बंदे के पास पैसे ना हो और रुमाल वाले उसको जानते भी हो, वो रुमाल वहां तक पहुंचने से पहले ही उठ के नमाज नीत ले। या आप किसी इशारे पे खड़े हो और आप फकीर को अपनी तरफ आते हुए देखें तो अगर आपका शीशा नीचे हो तो आप फटाफट ऊंचा कर लेते हैं। इसी तरह हमारे वजीर आजम की तकरीर पे बहुत सारे लोग अपना शीशा ऊंचा कर लेते हो। खड़ोन लगा जो इन्हें मंग लेना जी साढ़े को। मेरा ख्याल ये है, ये बात इसलिए की है वजीर आजम साहब कि आप वाकई दुखी हैं और आपको ये एहसास अगर हो चुका है कि हम मांगते हैं और ये बहुत बुरी बात है और हम कर्जा ले लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, तो हजूर कर्जा खत्म करने का सबसे पहला तरीका तो घरों शुरू करो। ये अभी ताज़ा फैसला किया आप लोगों ने कि MNA हजरात जब सरकारी दौरे पे हवाई जहाज पे सफर करेंगे तो उनको फर्स्ट क्लास की टिकट मिला करेगी। कितना बुरा लगता है कि फकीर फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे। अगर पिछो को इकोनॉमी अंग्रेज बैठा हुआ आगे आके कह दे क्या होने तो मेरे को पैसे मांगते हैं पे तू। What is this nonsense? It is not to fear off with your people's colony. ये तो ऐसे ही है हजूर कि आप किसी होटल में रोटी खा रहे हैं और कोई फकीर आके आपको कहे कि हजूर अल्लाह भला करे भुख लगी है मैंने भी रोटी खवा दियो। आप कह दें कि दे दो ऑर्डर। बहरा आपसे आके पूछे कि भाई जी की खाओगे तो तुसी कहो जी 1.5 किलो कढ़ाई बनवा लो। मेरी जान दाल रोटी तो ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अगर मांग रहे हैं तो फिर कढ़ाई गोश्त का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। और ही तौर पे पहले तो ये जो अयाशियां हैं मुल्क के अंदर उसको खत्म करे ना जी। अब फर्स्ट क्लास का टिकट जेड़ा तुहानू ते पूछल ते बह के जाना चाहिए। बल्कि जितना करिया चढ़ गया हुआ मेरा ख्याल है उन्होंने नहरों नहर निकल जाना चाहिए। और फिर बार हाथ दफा हम अपने ही प्रोग्राम में रोने रो चुके हैं और भी बहुत से लोग चीख रहे हैं कि ये जो सरकारी मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है अफसरों को गाड़ियों को याशी के लिए वो बंद कराएं। जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो बंद कराएं। तो इतने इतने बड़े बंगले 100-100 कनाल के दिए हुए हैं वो खत्म करके तो कनाल 2-2 कनाल के घर इनको इशू करें। लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो लैंड क्रूजर और प्राडो और फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी कारें ये खत्म करें हजूर खुदा के वास्ते। इनकी मेंटेनेंस पे जितने करोड़ों रुपये लग रहे हैं वो खत्म करें। ये है बचत। इस तरह रोने रोने से कुछ नहीं होना हजूर। ये अयाशियां जब तक बंद नहीं होंगी कशकोल हमारी बगल में ही रहेगा। और जदों तुम बाहर जाओगे फिर अगले कहेंगे बचो इन्हां कोल कशकोल जे। हमारे सरबराहान तो बाहर जाके इतना मांगते हैं कि मेरे जहन में आता है कि जो 7 सेक्रेटरी जाता है ना वो इजलास के बाहर दरवाजे के साथ कापी लेके इसी तरह बैठा होगा जैसे शादी के ऊपर जब सलामियां मिल रही हो दूल्हे को तो साथ एक बंदा नहीं कापी पेंसिल पकड़ के बैठा। इन्हें किन्ने दिते नहीं जी 5000। इन्हें किन्ने दिते ने 500। अब मलक साहब ने किन्ने दिते ने 2000। लहा के जाओ भाई जी लहा के जाओ। तो हजूर ये अगर आपने सलामियां लेनी बंद करनी है तो फिर आपको फंक्शन और अयाशियां बंद करवानी पड़ेंगी। अभी तो सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि कर्जा मिले तो सारा पाकिस्तान लुड़ियां पा रहे हैं। ईमान से जिस तरह किसी फकीर को आप 10 रुपये दे देना तो फटाफट दौड़ के दूसरे के पास जाता है कि ओ बहु स्कूटर वाला 10 दें दी। हमारी ये हालत हुई है जनाब। अजीजी मैंने तो बाहर जाना ही छोड़ दिया। वाहे मैं डरना ना उत्थे किते अंग्रेज मैनू फड़ के ना कहे ओ यही जे उन्हां दा मुंडा जिन्हां को असीं पैसे लेने आ।
वैसे तुम ना डरा करो, तुम कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम कीनिया। अजीजी चेक कर लो कि कीनिया को भी ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਏ ਹੁਣ। मियां साहब गौरी दी गल ते गौर करो ते अपने सारे हुकूमती अहलकारां नूं ये सबक याद कराओ, ए तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। रोजा ठंडा करने के लिए गर्मियों में नहर में जाकर टुबियां मार मार के रोजे ठंडे करते थे, हाय विचों कई पानी भी पी जाते हैं। अच्छा जी, एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। आपको सबको मालूम है कि 1 साल 1 महीना हुआ, बल्कि 15 दिन ऊपर हो गए, अमजद इस्लाम अमजद साहब को हमसे बिछड़े हुए। उनकी बेगम साहिबा भी फौत हो गई। मैं यकीन मानिए कि जब अमजद साहब के जनाजे पे गया ना, तो उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था कि भाभी के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल हो। कि मैं उनका एक फैमिली मेंबर ही था, फैमिली फ्रेंड थे, बड़े प्यारे बुजुर्ग थे हमारे। उनका आपस में बहुत प्यार था, और फिर वो कई इंटरव्यूज में भी बता चुके कि वो उनकी चचा की बेटी थी। जी जी। और बल्कि वो उसको बड़ा लाइट अंदाज में सुनाया करते थे कि हम एक ही घर में रहते थे। अच्छा। तो एक ही जगह एक ही घर में बड़े हुए हम। तो एकदम मुझे अचानक पता चला कि मेरी इससे शादी हो रही है। अच्छा। उसी घर में रह रहे हैं। तो उनका बड़ा आपस में प्यार था। बाजी भी बड़ी ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन इंसान थी। क्या बात है। बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी। जब भी कभी उनसे मुलाकात हुई, उनके घर जाना हुआ, इंतहाई शफीक और मोहब्बत से भरी हुई, और आपस में बड़ा ही उनका दोस्ताना था, बहुत प्यार था। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। उनके जनाजे पे कोई अमजद साहब के दोस्त बता रहे थे कि अमजद साहब के जाने के कोई 1.5-2 महीने बाद ही उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानियां करे और उनका आखिरी सफ़र बखैर व आफियत हो। अच्छा, उधर ही जनाजे पे ही ना जी, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग रोज़ों के दौरान ये कोशिश करते हैं, अभी भी शुक्र है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को खुश करना चाह रहे होते हैं, मगर फिर भी ये इंटरनेट ने और ये सोशल मीडिया ने बहुत फ़र्क डाल दिया, बहुत फ़र्क डाल दिया। अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल शोबाइल लेके नेट वेट इस्तेमाल करके तो घरों में छुपे बैठे होते हैं। वरना मुझे याद है कि हमारे बचपन में ये जो रमज़ान का महीना होता था ना जी, ये बिल्कुल उसी तरह होता था कि जिस तरह 11 महीने ताड़े थे 1 महीना साडा। वो इतना खुशी का माहौल होता था, इतना सेलिब्रेट किया जाता था, रमज़ानुल मुबारक हो। और सेलिब्रेट सिर्फ यही नहीं कि शरारतें या भाग दौड़ या खुशियां, नहीं, बाकायदा इबादत बहुत होती थी। इबादत होती है, अब भी होती है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अल्लाह ताला के नज़दीक हैं, रब के दोस्त हैं, जो वो बिल्कुल अब भी करते हैं। मगर उस वक्त मुझे याद है कि बच्चों को बड़ी ये तरबियत दी जाती थी। जी बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे जो है ना जी, वो भी सहरी के वक्त कम से कम जरूर उठे होते थे, उठे जरूर होते। और उनको खाना थोड़ा सा खिला के तो चिड़ी रोजा रखाया जाता था, और फिर सारा दिन उनका मजा लिया जाता था। उनसे दोस्त अहबाब, मेहमान, मोहल्लेदार, बुजुर्ग पूछते थे कि रोजा रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कहते थे यहाँ पेटी में। चल भाई 1 बज गया, तुम्हारा रोजा खुल गया। और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारा रोजा खुल गया है, चलो खोल लो। हाँ जी। को जब माएँ या बाप ये फील करता थे कि भाई इसको अब खिला देना चाहिए कुछ, तो एक तरबियत होती थी जी। फिर कुरान पाक बहुत पढ़ा जाता था। सही बात है। बाकायदा मुझे याद है कि ये काफी आदत होती थी लोगों में कि वो कहते थे जी कि कुरान पाक खत्म करना है जरूर रोजों में जी। बिल्कुल ऐसी अजीज, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक में ही उतरा हुआ है कुरान पाक, तो इसे खत्म करना है। रावी में तो खत्म किया ही जाता था, लोग घरों में खुद भी जी उसे पढ़ के खत्म करते थे। हर फर्द अपने अपने हिस्से का कुरान पाक पूरा। हाँ जी, हाँ जी।
कोशिश होती थी कि भाई कुरान पाक ख़त्म करना है, और बड़ा उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था, उसे दाद दी जाती थी बच्चे को कि इसने भाई कुरान पाक पढ़ लिया। वो अब कम नज़र आता है जी। अल्लाह ताला माफ़ कर दे और अल्लाह पाक हमें इसी रुझान को बढ़ाने की और ज़िंदा रखने की तौफीक दे, आमीन। फिर दूसरी तरबियत होती थी नमाज की, मस्जिद में जाने की जी, मस्जिद में किस तरह जाना है, उस वहाँ पे कैसे बैठ, ये बहुत ज़्यादा लोग ना जी अपने बच्चों की तरबियत करते थे। वो मस्जिद में शरारतें भी बहुत होती थी जी, बच्चों के दरमियान, काफ़ी हल्ला गुल्ला भी होता था, मगर वो कुछ लोग कहते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को खेलने की भी इजाज़त देते, इसलिए नमाज के वक्त उनसे कहें कि खामोश रहें, बाकी बच्चे अगर आके इधर भाग दौड़ रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग एतराज भी करते हैं, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मस्जिद में क्यों, आराम से बैठा। तो ये सारी मिली जुली कैफियत जो है ना जी, ये एक रौनक बकायदा लगी होती थी, बकायदा सर टोलियां बनाई होती थी शहरी में जगाने के लिए। हाँ, शहरी में देखो ना जरा, पीपा साहब कितनी अच्छी गाली मतलब ये बकायदा टोलियां बनी होती थी, मोहल्ले के लड़के जो हैं वो मिल के पीपा शीपा लेके तो सारे मोहल्ले में वो बजा के लोगों को जगाते थे जी। यार मुझे थैला साहब एक बुजुर्ग याद है जी, बाकायदा वो हमारे मोहल्ले में ना जी मौलवी गुलाम रसूल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। बड़े प्यारे बुजुर्ग थे और वो ऊंचा ऊंचा आवाजें दिया करते थे मस्जिद में जाते हुए, ओए नमाज का टाइम हो गया है, और मस्जिद चलो नमाज का टाइम हो गया है, बाकायदा ऊंचा ऊंचा वो कहा करते। मैं बड़ा हैरान होता हूँ याद करके कि यार वो कैसे प्यारे बुजुर्ग थे, बड़ी ओनरशिप होती थी अजीजी, यानी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो अब देखने में नजर नहीं आती उस तरह। नजर नहीं आती। बिल्कुल। तो सर जी मोहल्ले में ड्यूटियां लगी होती थी, बारी बारी इफ्तारी जाती थी मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में बाकायदा जी ये होता था कि मस्जिद में रोजेदारों को अफ्तारी करवानी है, तो वाकई बारी लगी होती थी। 26वें रोजे के बाद गोगा अफसुर्दा हो जाता है, आए सोचना शुरू कर देता है कि उन घरों खाना पैना है। और नलायक मैं इसलिए अफसरदा होता हूँ कि अगले रमजान में पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। यार उसने मजाक में बात की है गोगे, तुम तो फौरन ही मौलाना मुनीब हो गए हो। अच्छा जी, वो छोटे छोटे बच्चे जो अफ्तारी लेके मस्जिद में जाते थे, तो वो जाते जाते रास्ते में डिश में से कुछ खा भी लेते थे। ये लाइमन इसने खाया हुआ है। वैसे दीदी मैं हम ज्वाइंट फैमिली है तो बड़ा मजा आता है, कोई 20-25 लोग हैं जो एक दूसरे को चीजें देते हैं, वो उसको वो उसको वो उसको। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये तो खुशकिस्मती है ना जी कि आप सारी फैमिली इकट्ठे रह रहे हो, वो तो फिर मजे ही और हैं। बिल्कुल। मगर गौरी साहब रमजान के महीने में खास तौर पे सारा मोहल्ला एक खानदान बन जाता था। बिल्कुल। फिर सर उन रोजों का मजा भी कुछ और था कि जब किसी के घर में एसी भी नहीं होते थे और मलमल के कपड़े आपने भिगो के पक्के के नीचे आपने वो ऊपर लेकर क्या वो वक्त। वो गर्मियों के रोजे। अब भी जो लोग नहीं जिनके घर एसी लगे हुए जी हाँ जी, वो रखते हैं। ये टैप लोग वो नहा के गीले कपड़े सर पे लेके गर्मियों में, अभी तो थैला साहब अल्लाह ताला का शुक्र करें कि बड़े मजे के रोजे हैं जी बिल्कुल, वही गर्मी शर्मी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, नहर पे चले जाते थे लोग जी रोजा ठंडा करने के लिए गर्मियों में, नहर में जाकर टुबियां मार मार के रोजे ठंडे करते थे, हाय। विचों कई पानी भी पी जाते हैं। जिन्होंने घुट लाए ने भाई वो फुले ने। सीरियसली एक अद्धा लाजमन बीच में से कह रहा होता था लड़का, तो यार गले च पानी टुर जाए तो रोदा टूटते। नहाते हुए अगर किसी का पानी नक में चला गया या गले में, वो बेचारा सबको पूछता फिरता था, यार तेनू नहीं नहाना आंदा, तू आया क्यों भाई? तो भाई अपना घरों डब्बा ले आया कर, कंडे ते बह के नहाया कर। अच्छा, इफ्तारी से पहले क्रिकेट भी खेला जाता था वैसे, थोड़ी देर पहले ना, 1 घंटा आधा घंटा पहले, वो बस खेल के मगरिब। वो तो अभी भी शहरी के वक्त लड़के लगे होते हैं, ढम 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 शोर शराबा, वो सारा कुछ ठीक है, बस भी हवाले से एक्टिविटीज कम हो गई। कम हो गई। बिल्कुल। वैसे तो अब सारी रात जागते हैं लोग, हाँ जी। अक्सर लोग जो हैं वो सारी रात जागते हैं, सुबह वो सहरी रख के रोजा रख के नमाज पढ़ के ऐसा सोते हैं कि जोहर के वक्त ही फिर उठते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे जाग रहे होते हैं, बंदा किसी हैरान हो जाता है कि यार 2:30 बजे बच्चे फिर निके निके गली च। और किसी दिन तो गली का चक्कर लाए छोटे बच्चे तो बाहर निकलना बंद करें। अजीजी, तुम्हें मालूम है
कि गौरी अपने मोहल्ले का मौजज़ तरीन आदमी है। जी जी, मुझे एक इसके महल्लेदार ने बताया कि असी गौरी को बच्चियां नूं दम करान जाने। नाज़रीन, बेहतरीन मुसन्निफ तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि बात सिर्फ वही करो जो आने वाले वक्त के लिए खैर का बायस बन जाए, वगरना हर दूसरी बात सिर्फ शोर है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।